قرآن اور اہل قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات کے بعد سابق وزیر بلوچستان جام کمال نے ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون نے شمولیت کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ نواز شریف کوئٹہ کے دورے پر ہیں، جہاں سابق وزیر اعلیٰ جام کمال نے ان کے ساتھ ملاقات کر کے پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ نواز شریف نے بلوچستان میں دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی، جن میں ملکی سیاسی صورتحال اور عام انتخابات سے متعلق امور پر گفتگو ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سرداری نے سابق وزیر میاں محمد نواز شریف کے دورہ بلوچستان کو نون لیگ کی کمزوری کا نتیجہ قرار دے دیا۔ نون لیگ کے علاقوں میں مشکلات کی انہیں دوسرے صوبوں پر فوکس کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ میاں صاحب اکا دکا سیٹوں کے لیے بلوچستان جانے کی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ بہتر ہے کہ تجاوزی مفت کریں۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ہمارے خلاف کونسل کے بے اتحاد بنے ہیں، لیکن ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ تھر کے عوام اپنی بہن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو نہیں بھولے۔ کچھ لوگ اقتدار کو ہی اتحادی بناتے ہیں، لیکن ہمارے لیے عوام کافی ہے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف میں بھی اتحاد بنے، لیکن ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کا فلسفہ عوام کی قدموں میں سیاسی جنت ہے، ہمارے لیے ہی یہ مشعل راہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج حق نے کہا کہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں بلکہ عقیدے، نظریے اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ فلسطینیوں کی کامیابی پوری امت کی کامیابی ہے۔ فلسطینیوں یہودیوں اور صہیونیوں کی کامیابی ہوگی۔ یہ لڑائی جہاد مسجد اقصی قرآن کی پاسخی ہے۔ گزشتہ 37 دنوں میں 11,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کو چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کے جیل ٹرائل سے روکتے ہوئے تمام ریکارڈ 2 دن میں طلب کر لیا۔ اٹارنی جنرل منصور امان نے عدالت کو بتایا کہ وفاقی کابینہ نے سائفر کیس کے جیل کے ٹرائل کی منظوری دی۔ عدالت نے کہا کہ وہ نوٹیفیکیشن ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ جیل ٹرائل ہوگا تو یہ غیر معمولی ٹرائل ہوگا۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات کے معاملے پر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 20 نومبر کو طلب کر لیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے والے افراد کو بھی طلب کر لیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں جسٹس مظاہر نقوی کو بھی جواب کا موقع دیا جائے گا۔ اجلاس میں جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس سردار کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں جسٹس مظاہر نقوی کے اعتراضات پر بھی غور کیا جائے گا۔ جبری لاپتہ افراد کے کیسز کے لیے اہم اقدام کیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد مفتی کی سربراہی میں 3 رکنی وزراء کی کمیٹی کی منظوری دے دی ہے، جس کا وزارت قانون نے انصاف کے کٹہرے میں لانے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال کے کمپاؤنڈ میں شہید 189 فلسطینیوں کی جماعی قبر میں تدفین کر دی گئی۔ الشفا اسپتال میں موجود 179 لاشوں کو ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں جماعی قبر میں دفنا دیا گیا۔ ڈائریکٹر ہسپتال ابو سلمیہ نے کہا کہ شہید فلسطینیوں کی لاشوں کو اجتماعی قبر میں دفن کرنے پر مجبور کیا گیا۔
चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने वर्ल्ड कप में कारकर्दगी की बुनियाद पर सिलेक्शन कमेटी को फारिग कर दिया। अबूरी चीफ सेलेक्टर तौसीफ अहमद, जमुना बासी और हैदर शामिल थे। नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्की है। नई चीफ सेलेक्टर के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक क्रिकेटर से राबते बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। बाबर आजम कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बरकरार रहेंगे या नहीं, फैसले अब कल मुतवक्की है। ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की तीसरी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ से कल मुलाकात मुतवक्की है। ज़राए का कहना है कि मुलाकात से कबल बाबर आजम के मुस्तकबिल से मुतल्लिक करीबी लोगों से मुशावरत जारी है। बाबर अपने मुस्तकबिल से मुतल्लिक बड़ा ऐलान करने के लिए मुशावरत कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर आकिब जावेद ने फास्ट बॉलर शाहीन शाफी और हारिस राउफ को टी20 का बॉलर करार दे दिया है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलर्स की नाकिस कारकर्दगी के बाद उन पर सख्त तनकीद की जा रही है। अब आकिब जावेद की जानिब से इस मामले पर वजाहत पेश की गई। हमने शाहीन और हारिस को टी20 क्रिकेट के लिए ट्रेन किया। मुझे पिछले हफ्ते से गालियां दी जा रही हैं। क्रिकेटर इमामुल हक शादी की तैयारियों के बायस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचेस के लिए लगने वाले ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कौमी क्रिकेट टीम डॉक्टर इमामुल हक शादी के तकरीबान दौरे ऑस्ट्रेलिया से कबल लगने वाले ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा नहीं होंगे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या राय से मुतल्लिक दिया गया कमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। टी20 वर्ल्ड कप की तकरीब में खुसूसी शिरकत की। इस दौरान साबिक क्रिकेटर्स ने हालिया आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी पर भी अपने तासुरात का इजहार किया। अब्दुल रज़ाक ने पेश करते हुए कहा कि अगर हमारी सोच ऐश्वर्या राय से शादी करके और उससे नेक परहेजगार बच्चा हो तो ये कभी हो नहीं सकता। पाकिस्तानी अदाकारा नताशा अली ने दावा किया है कि अगर मैं चेहरा छुपा भी लूं तो मदा आंखें और जुल्फे देखकर पहचान लेती हैं। शादी के बाद जिंदगी में तब्दीली के हवाले से बात करते हुए नताशा अली कहना था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी और आदतें तब्दील हो चुकी हैं। शादी से पहले मैं शूटिंग पर हमेशा ताख़ीर पहुंचती थी। मुझे नींद से उठने में मुश्किल दरपेश होती थी, लेकिन शादी के बाद मैं जल्द जाग जाती हूँ। सवाल के जवाब में नताशा अली ने इंकशाफ किया कि एक साथी अदाकारा ने मुझसे शादी के बाद की जिंदगी से मुतल्लिक पूछते हुए मशवरा किया कि शोहर की नौकरानी बनकर कभी ना रहना। मारूफ मेजबान निदा यासिर ने अदाकार और मेजबान फाहद मुस्तफा से खानदानी तनाज़े का एतराफ़ किया है। निदा का कहना था कि फाहद मुस्तफा के मेरे शो में न आने की वजह में ऑन एयर नहीं बता सकती। नामवर पाकिस्तानी अदाकारा गनाली ने कहा कि शादी और फैमिली बहुत जरूरी है, उससे जिंदगी में ठहराव आता है। शादी से मुतल्लिक बात करते हुए अदाकारा गनाली का कहना था कि मेरे ख्याल से फैमिली बनाने के बाद मुझ में अकल आ गई है। मालूम हो गया है कि दुनिया की असलियत क्या है। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी मेरी जिंदगी में ठहराव नहीं था। शादी और फैमिली इंसान के लिए बहुत जरूरी है। नुमान ने कहा कि शोहर से उनकी पहली मुलाकात एक प्रोग्राम में हुई थी, जिसके बाद शोहर उन्हें घर पर अतियात देने आते थे, जिस पर उन्हें उनसे मोहब्बत हो गई तो दोनों ने शादी कर ली। आसमान नुमान ने इंकशाफ किया कि उन्हें शोहर के साथ इस वक्त मोहब्बत हो गई थी जब वो 9वीं जमात की तालिबा थी और उस वक्त उन्होंने शोहर का कोई भी ड्रामा तक नहीं देखा था।
हिलाने वाली अदाकारा करीना कपूर खान ने कहा कि शादी से कबल उनके और सैफ अली खान के दरमियान 5 साल तक ताल्लुकात रहे और जब उन्हें बच्चों की ख्वाहिश हुई तो दोनों ने शादी कर ली। उनका कहना था कि अगरचे वो 2 बच्चों की मां बन चुकी हैं और खानदानी जिंदगी में मसरूफ है, लेकिन इसके बावजूद वो आज भी ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि वो पुरकशिश और खूबरू भी है। अदाकारा दीपिका पादुकोण का कहना है कि बॉलीवुड में कल भी नेपोटिज्म थी और आज भी है। नौजवानी में बॉलीवुड में काम करना शुरू किया तो इंडस्ट्री में पहले से काम करने और कामयाबी हासिल करने वाले लोगों के अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का सामना करना पड़ा। करियर के शुरू में अपने खाने पीने और सफर के अखराजात खुद उठाती थी। मॉडलिंग शुरू की तो मुझसे कहा गया कि आपको पेरिस, न्यूयॉर्क या मिलान में रहकर काम करना चाहिए, जिस पर मैंने जवाब दिया कि भारत मेरा घर है और मैं यहीं रहूंगी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 अपने रिलीज के दूसरे दिन ही 100 करोड़ के क्लब में दाखिल हो गई। फिल्म ने दूसरे दिन के अख्ताम तक 59 करोड़ तक का बिजनेस किया और पहले दिन को मिलाकर उसका मजमूई बिजनेस 104 करोड़ तक पहुंच गया है। टाइगर 3 में जहां सलमान खान ने जासूस एजेंट का किरदार अदा किया है तो वहीं दूसरी जानिब कैटरीना कैफ भी जोया नामी जासूस के किरदार में नजर आई, जबकि इमरान हाशमी ने फिल्म में विलन का किरदार निभाया है। भारतीय टीवी की तारीख के कामयाब तरीन शोज में शामिल दी कपिल शर्मा शो अब किस प्लेटफॉर्म से नशर होगा, ये मंजर-ए-आम पर आ गया। सोशल मीडिया पर कपिल शर्मा शो का नया प्रोमो जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो अब नेटफ्लिक्स से नशर होगा। प्रोमो में शो के मेजबान कपिल शर्मा को एक नए घर में घूमते हुए देखा जा सकता है। और भारत में एक ऐसा घर भी मौजूद है जिसकी छत के नीचे एक ही खानदान के 199 अफराद बसेरा करते हैं। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की शुमाल मशरकी रियासत मिजोरम के गांव बकतोंग में दुनिया के सबसे बड़े खानदान का घर है, जिसके 199 अफराद एक ही छत के नीचे रहते हैं। सियोना इस फैमिली के सरपरस्त थे, जिनकी 38 बीवियां, 89 बच्चे और 36 बच्चे शामिल हैं। सियोना का इंतकाल 2021 में 76 साल की उम्र में हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की वजह से पैदा होने वाली टीबी पेचीदगियों की वजह से हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं अफसा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर दें कि कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बाकायदा ऐलान कर दिया है। नवाज शरीफ कोयटा के दौरे पर हैं, जहां साबिक वज़ीर आला जाम कमाल ने उनके साथ मुलाकात करके पार्टी में शमूलियत का बासाफ्ता तौर पर ऐलान किया है। नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान में दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ भी मुलाकातें की हैं, जिनमें मुल्की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात से मुतल्लिक उमूर पर गुफ्तगू हुई।
नासिर वही दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरा बलोचिस्तान को नून लीग की कमजोरी का नतीजा करार दिया है। नून लीग के लिए लाहौर में मुश्किलात है, इसलिए उन्हें दूसरे सूबों पर फोकस करने का मशवरा दिया गया है। मियां साहब इक्का दुक्का सीटों के लिए बलोचिस्तान जाने की तकलीफ क्यों उठा रहे हैं, बेहतर है कि पंजाब पर ही फोकस करें। मियां साहब ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स के वोट लेने पर पीपल्स पार्टी को बहुत ताने दिए थे कि बाप के वोट बहुत बुरे हैं। उम्मीद है कि वो अपने मौकिफ पर कायम रहेंगे। नासिर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली सरदारी ने कहा कि हमारे खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बने, लेकिन उनकी कोई परवाह नहीं। साबिक सदर का कहना था कि थर के अवाम अपनी बहन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को नहीं भूले। कुछ लोग इक्तदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं, लेकिन हमारे लिए अवाम ही काफी है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बना, लेकिन उनकी कोई परवाह नहीं। कायद अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद का फलसफा अवाम के कदमों में सियासी जन्नत है, हमारे लिए मशले राह है। आम इंतखाबात में पीपी कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक कामयाबी हासिल करेगी। नासिर खबर शामिल करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत को चेयरमैन पीटीआर साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस के जेल ट्रायल से रोकते हुए तमाम रिकॉर्ड 2 दिन में तलब कर लिया गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने अदालत को बताया कि वफाकी काबीना ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। अदालत ने कहा कि वो नोटिफिकेशन हम देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है। जेल ट्रायल होगा तो ये गैर मामूली ट्रायल होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम जानना चाहते हैं ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। वादी उल नसर में जेल ट्रायल के तीनों नोटिफिकेशंस हाई कोर्ट के मुतल्लिका रूल्स के मुताबिक नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं तमाम मुतल्लिका इदारों से रिकॉर्ड लेकर अदालत के सामने रख दूंगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 20 नवंबर को तलब कर लिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुजाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने वाले अफराद को भी तलब कर लिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी को भी जवाब का मौका दिया जाएगा। इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी के एतराजात पर भी गौर किया जाएगा। निगरान विफाकी हुकूमत ने जबरी लापता अफराद के केसेस के लिए अहम इकदाम किया है। विफाकी काबीना ने निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुख्ती की सरबराही में 3 रुकनी वुज़रा की कमेटी की मंजूरी दे दी है, जिसका वज़ारत कानून ने इंसाफ के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 3 रुकनी कमेटी की मंजूरी विफाकी काबीना ने 7 नवंबर को दी थी और वज़ारत कानून के हुकाम ने नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया, जिसके मुताबिक वज़ीर दाखिला कमेटी के चेयरमैन, वज़ीर कानून और वज़ीर दिफा कमेटी के मेंबर होंगे, जबकि कमेटी जबरी गुमशुदगियों के केसेस का भरपूर जायजा लेगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा कि फलस्तीन सिर्फ फलस्तीनियों का मसला नहीं बल्कि अकीदे, नजरियों और ईमान का हिस्सा है। फलस्तीनियों की कामयाबी पूरी उम्मत की कामयाबी है। फलस्तीनियों की शिकस्त यहूदियों और सहूनियों की कामयाबी होगी। ये लड़ाई जिहाद मस्जिद अक्सा कुरान की हिफाजत के लिए है। गुज़िश्ता 37 दिनों में 11,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो गए हैं। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा कि फलस्तीनियों का मसला नहीं बल्कि अकीदे, नजरिए और ईमान का मसला है। फलस्तीनियों की कामयाबी पूरी उम्मत की कामयाबी है। फलस्तीनियों की शिकस्त यहूदियों और सहूनियों की कामयाबी हो। ये लड़ाई जिहाद मस्जिद अक्सा कुरान की हिफाजत के लिए है। गुज़िश्ता 37 दिनों में 11,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो गए हैं।
नाज़रीन, खबर यह है कि हिंदुस्तान में दिवाली के मौके पर अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। 12 नवंबर को दिवाली के मौके पर हिंदुस्तान भर में पटाखों से फजा शदीद आलूदा हो गई। दिवाली के मौके पर हिंदुस्तान के रिहायशियों की जान शदीद खतरात का शिकार हुई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान पूरी दुनिया में फजाई आलूदगी में फहरिस्त है, जबकि दिल्ली फजाई आलूदगी में दुनिया का सबसे आलूदा और गंदा तरीन शहर बन रहा है। राइटर्स के मुताबिक फजाई आलूदगी के बाद दिल्ली में तालीमी इदारों को बंद किए 1 माह से ज्यादा अरसा गुजर गया है। दिल्ली में पिछले 40 रोज से फजाई आलूदगी मजीद तेजी से बढ़ रही है। नाज़रीन, अहम खबर आपको दें कि 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद गैरकानूनी अफगान बाशिंदों को अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान ने गैरकानूनी गैर मुल्की अफराद के महफूज इंफराद को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम किए हैं। अफगान बाशिंदों की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए दीगर इक़दाम के अलावा उनकी आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से रास्ता ट्रांसिट कैंपस कायम किए गए हैं। बजरिया तुरखम और चमन बॉर्डर रसाना की बुनियाद पर हजारों अफगान शहरी अपने वतन वापस जा रहे हैं। रजाकाराना तौर पर अफगानिस्तान वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद चमन और तुरखम बॉर्डर पर मौजूद है। 13 नवंबर को 3239 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 3239 अफगान शहरियों में 892 मर्द, 833 खवातीन और 1514 बच्चे अपने मुल्क वापस लौट गए हैं। नाज़रीन, खबर यह है कि दिफाए वतन में जान कुर्बान करने की कई अनसुनी दास्तानों में एक कहानी सिपाही अब्दुल हमीद शहीद की भी है। सिपाही अब्दुल हमीद शहीद का ताल्लुक अफगान से है। सिपाही अब्दुल हमीद शहीद आखिरी गोली और खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहे। सिपाही अब्दुल हमीद शहीद 18 अक्टूबर 2023 को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके घड़ियों में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जख्मों की ताब न लाते हुए शहादत के पर फायज हो गए। सिपाही अब्दुल हमीद शहीद ने सोफारान में वालिदैन, बेवा और बच्चे छोड़े हैं। सिपाही अब्दुल हमीद शहीद के लवाहिकीन ने अपने एहसास का इजहार करते हुए कहा कि मेरे बेटे ने मुल्क के लिए बहुत सी कुर्बानी दी, हमें कोई अफसोस नहीं है। वालिद सिपाही अब्दुल हमीद शहीद के वालिद का मजीद क्या कहना है कि मुझे फख्र है कि मेरे बेटे ने मुल्क की हिफाजत के लिए शहादत हासिल की है। मेरे बेटे ने दुश्मनों के साथ बहादुरी से मुकाबला किया। सिपाही अब्दुल हमीद शहीद की वालिदा ने कहा कि हमें अब्दुल हमीद की शहादत पर फख्र है। मेरे बेटे ने मुल्क के खातिर दुश्मनों से बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी है। सिपाही अब्दुल हमीद शहीद उनका मैं वालदा मुल्क वास्ते कुर्बानी दी सी। ताकि कोई अरमान क्या नहीं शहादत की पूरे पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत वास्ते दुश्मन नाल डट के मुकाबला किया। अपने शहीद ते फखर है। सिपाही अब्दुल हमीद शहीद वालदा हाँ, लेकिन अपने बेटे की शहादत उसने अपने मुल्क की खातिर दुश्मनां नाल बहादुरी लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान की थी। जो अल्लाह ताला के रास्ते में मारे जाए उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। मैं शहीद अब्दुल हमीद की बेवा हूँ। वो बहुत मुहज़्ज़ब इंसान थे और बहुत बाइखलाक और बाकिरदार इंसान थे, बाअदब इंसान थे। मेरा वक्त उनके साथ बहुत कम गुजरा है, लेकिन बहुत अच्छी यादें हैं। किया करते थे कि अल्लाह ताला मुझे शहादत दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। अपने मुल्क पाकिस्तान की खातिर हमने जान का नजराना पेश किया और दुश्मनों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। वालदैन नाल बहुत अच्छे हैं, बहन भरावां नाल बहुत प्यार करे ने। साडे घर जेड़े भी रिश्तेदार आने आदमी शहीद का बहुत खासियत है। मेरे भाई को बचपन से ही आर्मी में जाने का बहुत शौक था। वो कहता था कि मैं आर्मी में जाऊंगा और मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश करूंगा और शहादत अल्लाह ताला मुझे नसीब करेगा। तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की और अल्लाह ताला ने शहादत नसीब की।
नासिन अफसोसनाक खबर शामिल करें लाहौर के इलाके शादरा टाउन से, जहां बिजली चोरों का लेस्को टीम पर कातिलाना हमला है। मोहल्ले ककेजई में मीटर रीडर काशिफ हमीद भट्ट को छुरियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। डीआईजी का मौके पर नोटिस देते हुए मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा लेस्को हुकाम पर जो है वो कातिलाना हमला किया गया, इस पर अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। बाकायदा इस ऑपरेशन में आईजी पंजाब जो है वो हिस्सा ले रहे हैं और सीएम पंजाब जो है वो बड़ी सख्ती से उन्होंने नोटिस लिया कि बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो देखने में आता है कि बिजली चोर जो है वो बड़े ताकतवर बने फिरे हैं और जो बिजली चोरी करते हैं वो मीटर रीडर या को तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं। तो ये शादरा टाउन का इलाका है जहाँ पर बिजली चोरी की जाती है। तो मीटर रीडर ने जब उसको चेक किया तो वादा करके चंद अबाश नौजवानों जो है वो पहले मीटर रीडर काशिफ भट्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके पेट में तेज धार का वार करके जो है वो चोरी का उसको शदीद जख्मी कर दिया, जिसको 112 की मदद से मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसको जो है वो हमारे जराये के मुताबिक 10 स्टिचिंग जो है वो लगे हैं और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि मुलजमान की तलाश जो है वो की जा रही है। घरों में छापे भी मारे जा रहे हैं। तो जिसका नोटिस बाकायदा डीआईजी ऑपरेशन समेत एसपी सिटी सलमान जफर लिया था, क्योंकि बिजली चोरी जो क्रैकडाउन है वजीर आला पंजाब की जानिब से किया गया है। आईजी पंजाब ने सुबह पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का हुक्म दिया। बाकायदा तौर पर पुलिस टीमें भी जो है वो इनकी प्रोटेक्शन के लिए लेस्को हुकाम की उनके साथ जाती हैं। तो मीटर रीडर काशिफ भट्ट की बात की जाए तो उनकी राय के मुताबिक बिजली चोरी के हवाले से आगाह किया गया था। जब वो स्पॉट पर पहुंचे हैं, मौका पर पहुंचे हैं, तो वहां पर मौजूद जो घर का मालिक था उसने छुरी का वार करके उसको जो है वो कत्ल करने की कोशिश की। छुरी जो थी उसके पेट में लगी और वो शदीद जख्मी हो गया और जख्मी हालत में खून में लथपथ ने जो है उसको मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर की जानिब से बताया जा रहा है कि इसको जो है वो गहरा कट लगा है, जिसको स्टिचिंग करके मरहम पट्टी की गई है। लेकिन पुलिस को जो है एप्लीकेशन दी गई है। एसएचओ जो शादरा टाउन है मियां तहसीन, उन्होंने अपनी एक टीम तश्कील दी है। वकास सब इंस्पेक्टर जो कि थाना शादरा टाउन में तैनात है, उन्होंने जो है वो मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए रेड किया, लेकिन मुलजम जो है वो गिरफ्तार में कामयाब हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजमान को जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर तमाम तर तफसीलात से नबी करें। बहुत शुक्रिया आपका। वहीं दूसरी जानिब मोगलपुरा से चलो रेलवे स्टेशन तक ट्रैक के दोनों तरफ एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जारी है। कब्जा मार्के से रेलवे की 12 कनाल कीमती जमीन वाकसात करवा ली गई है। जमीन की मालियत 18 करोड़ रुपए है। मजीद तफसीलात के मुताबिक एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के दौरान खुशगवार वाकया पेश नहीं आया। डीएस रेलवे लाहौर डिवीजन हनीफ गुल ने कहा कि रेलवे जमीनों की हिफाजत की कीमत पर यकीन बनाई जाएगी। नासिन वही दूसरी जानिब एमटी वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत हफ्तावार कारकर्दगी इजलास मुनक्किद हुई है। वासा के तमाम दफातर में गैर जरूरी बिजली के इस्तेमाल को खत्म करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। इस मौके खात्मे के लिए बिल्स में आगाही मुहिम मजीद तेज करेगा। टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज कामरान से जी कामरान अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। ये देखिए अक्सर एमडी वासा गुफरान अहमद की जेर हफ्तावार कारकर्दगी का अहम इजलास जो है वो मुनक्किद किया गया। इजलास में बिजली की बचत के हवाले से तमाम दफातर में गैर जरूरी बिजली के इस्तेमाल को खत्म करने का इरादा भी किया गया है। एमडी वासा ने तमाम डायरेक्टर्स को बिजली की बचत के हवाले से खसूसी इक़दाम करने के अहकाम भी जारी किए हैं। इसके अलावा शहर भर में पानी और सीवरेज की जारी तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया है। स्मोक के खात्मे के लिए वासा लाहौर बिल्स में आगाही मुहिम भी चला रहा है। वासा लाहौर 2 मिड क्वीन की जनरेटर और 20 वाटर टैंकर्स को धुएं कार लाते हुए छिड़काव भी कर रहा है। तमाम मरकजी शाहरों पर रोजाना की बुनियाद पर छिड़काव जारी रखा जाएगा। गुफरान अहमद ने कहा सीवरेज डिसल्टिंग शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद
कराने के अहकाम भी किए गए हैं। तमाम नादहिंदगान के गिर्द जो है वो शिकंजा भी सख्त करने की हिदायत की गई हैं। तमाम गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की हिदायत भी की गई है। यहाँ पर मैं आपको वाज़ह करता जाऊँ कि MD वासा गुफरान अहमद ने अजीज बट्टी टाउन के वासा इंस्पेक्टर नवीद खान को शाबाश दी है, जिन पर जो है वो राजबल तानी गई थी और इन पर कातलाना हमला और इनको धमकियां भी दी गई थी। इसके बाद वासा इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए शख्स के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी, उसे गिरफ्तार भी करा दिया है। इस इजलास में DMD ऑपरेशन अब्दुल करीम, DMD रेवेन्यू मियां मुनीर समेत दीगर अफसरान जो थे वो भी शरीक थे। जी ठीक है, कामरान अली तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में आर्टिस्ट बरकात के बनाए फनकारों की नुमाइश की गई। खामोश उफक और रूह के जरिए एक सफर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। बरकात का फनी सफर बरसों पर मुहित है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे कामरान अली। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में आर्टिस्ट बरकात के बनाए फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर की ज़हूरुल इखलाक गैलरी में आर्टिस्ट बरकात के फनपारे नुमाइश के लिए पेश किए गए। खामोश उफक, बर्ज और रूह के जरिए एक सफर का इफ्तिताह कर दिया गया। बरकात का फनी सफर बरसों पर मुहित है और मसवरी के गहरे जज्बे के साथ लबरेज है। बरकात के इन फनपारों में जिंदगी की पेचीदगियों और मुआशरती रवैयों को फोकस किया गया। साबका चार्टर्ड अकाउंटेंट बरकात को जिंदगी बदलने वाली दिमागी चोट का सामना पढ़ना पड़ा, जिस पर इनकी जिंदगी का रुख बदल गया। खामोश उफक के जरिए इनकी पेंटिंग्स और फनपारे खसूसी जरूरियात के हामिल फर्द को दरपेश रोजाना चैलेंजेस के जाती तरक्की और तख्लीकी सलाहियतों की एक जबरदस्त कहानी के तौर पर बयान करते हैं। इस नुमाइश फातियाना सफर के निचोड़ को समेटती इन आर्ट वर्क की तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर है। डॉक्टर आशिया कासिम, न्यूरोलॉजिस्ट, आर्ट थेरापी और नेटिव मेडिसिन एक्सपर्ट और बरकात की बहन नजर जामत की मुकर्रीन की मुमताज फहरिस्त में प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तजा जाफरी, वाइस चांसलर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, प्रोफेसर डॉक्टर इजाज अनवर, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आर्टिस्ट अंबरीन सिद्दीकी, विजिटिंग लेक्चरर MCA डॉक्टर अनम अंजुम, माहिर नफ्सियात माजूरी के हकूक की सरगर्म कारकुन, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर सीमी सादिया, फिजिशियन और हेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट अहमद हसनात, इंजीनियर डायरेक्टर बाबता माजूरी के हकूक के कारकुन और बरकात के बिजनेस मैनेजर अहमद मलक TTCP और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। तकरीब की आर्ट के शायकीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज। नाज़रीन, खबर यह है कि वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO सरदार आतिफ सुल्तान का बड़ा इकदाम है। शहरियों के मसाइल घर की दहलीज पर हल करने का अज़्म है। इस सिलसिले में वार्ड नंबर 1 कैवेलरी ग्राउंड पार्क में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज मोहम्मद साकिब बट से। जी साकिब, बताइएगा कचहरी का इनेकाद किया गया है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, DC मिल्ट्रीलैंड के कमात पर CEO वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड सरदार आतिफ सुल्तान ने लोगों के मसाइल को इनके घर की दहलीज पर हल करने का अज़म किया है। इस सिलसिले में CEO की जानिब से वार्ड नंबर 1 कैवेलरी ग्राउंड पार्क में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहाँ पर CEO सरदार आतिफ सुल्तान इलाके के रिहायशियों के मसाइल सुने। रिहायशियों का CEO सरदार आतिफ सुल्तान को पानी, स्ट्रीट लाइट और इलाके में कूड़े के हवाले से मसाइल का बताया, जिस पर CEO ने मौके पर ही अफसरान को इनके मसाइल हल करने के लिए हिदायत दी। इस मौके पर अहले इलाका की जानिब से CEO सरदार आतिफ सुल्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि हम CEO और कंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे मसाइल के हल के लिए इलाके में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौके पर CEO सरदार आतिफ सुल्तान का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कंटोनमेंट बोर्ड के रिहायशियों के मसाइल के खात्मे के लिए कोशा हूँ। इस सिलसिले में दिन रात अफसरान के साथ राब्ते में हूँ। आज यहाँ पर आकर लोगों के मसाइल हल करने में जो खुशी और इत्मीनान मुझे मिला वो नाकाबिले बयान है। इंशाअल्लाह तमाम वार्ड में खुली कचहरियों के इनेकाद का जरिए लोगों के मसाइल सुनकर इनको मौके पर हल किया जाएगा। जी ठीक है, साकिब बट तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बर्फा क्रीम टावर में स्कॉलरशिप अवार्ड के इजरा की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में चेयरमैन डॉक्टर शाहिद मुनीर बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। इंटरनेशनल पोस्ट डॉक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 7 यूनिवर्सिटीज असासा में स्कॉलरशिप तकसीम की गई। इंटरनेशनल रिसर्च बोर्ड फेलोशिप के तहत 10 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में स्कॉलरशिप तकसीम की गई। मजीद तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था कि स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी ने तमाम उम्मीदवारों को मेरिट पर मुंतखब किया। आला तालीम और
اور تحقیق کا فروغ PHEC کی اولین ترجیح ہے۔ اسکالرشپ کے لیے منتخب ہونے والے اساتذہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ناصر خبر یہ ہے کہ شادرہ کے علاقے محلہ ککزئی میں بجلی شور کا میٹر ریڈر پر چھری سے حملہ ہے۔ کاری لگنے سے میٹر ریڈر کاشف حمید شدید زخمی ہو گیا، تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس سے پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سینئر رپورٹر ساجد قاسمی سے۔ جی ساجد، بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جی کوہ نور، آج شاہجہاں لاہور کے مشہور علاقے محلہ ککزئی میں ایک بجلی چور بدماش علی ملک نے چوری میں ملوث پائے جانے پر ساتھیوں سمیت میٹر ریڈر کاشف حمید بٹ پر تیز دھار چھرے سے قاتلانہ حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں کاشف حمید بٹ کاری ضرب لگنے کی وجہ سے موت و حیات کی کشمکش میں سروسز ہسپتال میں زیر علاج ہے اور معالجین کے مطابق نازک صورتحال سے دوچار ہے۔ ہسپتال میں CO لیسکو شاہد حیدر، چیف انجینئر سرور مغل، SC چودھری نثار گجر، ایکشن احمد فراز، ایکشن نعمان بھٹی، SDO حنزلہ اور زونل چیئرمین زاہد ملک دیگر یونین نمائندگان کے ساتھ موجود ہیں۔ ہسپتال میں کوہ نور کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے CO شاہد حیدر نے کہا کہ بجلی چور اور نادہندگان آخری دموں پر ہیں، اس لیے بزدلانہ حرکتیں کر رہے ہیں مگر کسی صورت بچ نہیں پائیں گے۔ SC نثار گجر نے کہا بگوڑے مفرور بجلی چوروں کو پتال سے نکال کر کٹہرے میں لائیں گے۔ ایکشن نعمان بھٹی اور SDO حنزلہ نے کہا کہ اندراج مقدمہ کی درخواست متعلقہ تھانے دے دی گئی ہے اور مزید کارروائی جاری ہے۔ یونین کے زونل چیئرمین زاہد ملک نے کہا کہ ہم اپنے قائد خورشید احمد اور SC فرد سرکل نثار گجر کی قیادت میں بجلی چوروں کے خلاف بلا خوف و خطر کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ جی ٹھیک ہے، سینئر رپورٹر ساجد قاسمی تمام تر تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناصر، دوسری جانب ویزا ان کے CEO عبدالقیوم عارف کا ویزے کے نام پر لوٹنے والے لوگوں کے بارے میں اہم انکشافات منظر عام پر آئے ہیں۔ عبدالقیوم عارف کا لاہور پریس کلب میں صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے، کہا ویزا پروسیسنگ کی کوئی فیس نہیں، اس حوالے سے رپورٹ کریں گے ثاقب بٹ۔ آج لاہور پریس کلب میں ویزا ان کے CEO عبدالقیوم عارف نے پریس کانفرنس کی، جس میں سادہ لوگ عوام کو ویزا لگوانے کے نام پر کچھ نام نہاد لوگ کیسے لوٹ رہے ہیں اور اس کا انکشاف کیا کہ ویزا پروسیسنگ کی کوئی فیس نہیں ہوتی۔ مزید بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2021 سے پہلے دنیا کے کسی بھی ملک کے ویزا کے لیے اپائنٹمنٹ کی کوئی فیس نہیں ہوتی تھی، اب اپائنٹمنٹ کے لیے لاکھوں روپے ہتھائے جاتے ہیں۔ کینیڈا آج کل ویزا درخواست پر پروسیسنگ کرنے سے پہلے ہی ریفیوزل کر دیتا ہے، ریفیوزل کے بعد بایو میٹرک کے لیے بلاتے ہیں جو کہ صریحاً ناانصافی اور بدماشی ہے۔ USA کے ویزے کے لیے 1 سال تک اپائنٹمنٹ میسر نہیں ہوتی، اگر اپائنٹمنٹ لینی ہے تو لاکھوں روپے بھی دینے پڑتے ہیں۔ مارکیٹ میں مافیا کا کنٹرول ہے جو اپائنٹمنٹ کے لیے لاکھوں روپے لے کر اپائنٹمنٹ دیتے ہیں۔ اس سارے کھیل میں جیری اور فیڈیکس کا اہم کردار ہے، ان اداروں کی ملی بھگت کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہے۔ عوام الناس کو ویزا کے ڈن بیسس کے چکر میں دے کر لاکھوں روپے بٹورے جاتے ہیں، حالانکہ ڈن بیسس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آخر میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام الناس کو لوگوں اور مافیا کے فراڈ سے بچانا چاہیے، اس کے لیے ایک بہت ہی اچھا اور پڑھا لکھا کنسلٹنٹ ہائر کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو کنسلٹنٹ آپ کو نہیں بتاتا کہ کوئی بھی فائلز آپ کی کس طرح پیپرز تیار کر رہا ہے، اسی لیے سادہ لوگ عوام کو بہت ہی برے طریقے سے لوٹا جا رہا ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی ویزا لگوانے کے لیے باہر جانا ہو یا ویزا لگوانا ہو تو اس کے لیے ان کو اچھا کنسلٹنٹ ہائر کرنا چاہیے اور تمام فائل اپنے سامنے بنوانی چاہیے۔ کیمرامین چاند کے ساتھ محمد ثاقب بٹ، کوہ نور نیوز لاہور۔
नाज़रीन, खबर आपको दे कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। फसलों की बाकियात चलाने के खिलाफ सख्त एक्शन के लिए महकमा एग्रीकल्चर की बजाय असिस्टेंट कमिश्नर फोकल पर्संस मुकर्रर कर दिए गए। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी को बंद करके भट्टे चलाने पर भट्टों को मिस्मार करने का हुक्म जारी कर दिया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ मलिक अयान से। जी अयान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, इंतजाज स्मोक के हवाले से खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। बर वक्त एक्शन किया जा रहा है तमाम अफसरान की जानिब से और गफलत पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयों की भी हदायत जारी की है कमिश्नर लाहौर ने। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर हदायत आज अहम इजलास भी मुनक्कद हुए जिसमें इक़दाम और हदायत के हवाले से जो बातचीत की गई है। कमिश्नर लाहौर ने फसलों की बाकियात बनाने के खिलाफ सख्त एक्शन के लिए एग्रीकल्चर की बजाय एसीज को फोकल पर्सन जो मुकर्रर कर दिए। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी को बंद करके भट्टे चलाने पर भट्टों को मार करने की हदायत आज कमिश्नर लाहौर ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को जो हदायत जारी कर दी है। 24 घंटों में शिकायत का अजाला ना होने पर कमिश्नर लाहौर ऑफिस खुद अजाला करवाएगा, जबकि डीसी ननकाना शेखुपुरा मोटरवे मॉनिटरिंग को सख्त जो है उनको भी करने की हदायत जारी कर दी है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि फसलों को आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई मौके पर अमल में लाई जाए और इसकी बाकायदा वीडियो बनाकर कमिश्नर लाहौर ऑफिस में भिजवाई जाए। तमाम पैरालिसिस प्लांट जो है वो सील किए जाए, जबकि किसी किस्म के भी फैक्ट्री जो कि धुआं छोड़ने का सबब बन रही है उसको पूरी तौर पर सील करके कार्रवाई अमल में लाई जाए। शुमाली लाहौर के हवाले से महमूद बुटी एरिया में 12 टीमें सनती यूनिट जो है चेकिंग के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। उन तमाम जो 12 टीमें होंगी वो असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर नम फातिमा की मतहत जो है वो कार्रवाइयाँ करेंगी और शुमाली लाहौर में तमाम कार्रवाइयों को जो है डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत कमिश्नर लाहौर भी खुद मॉनिटर करेंगे। महकमा माहौलियात और सनती यूनिट को सील करेगा, जबकि डी सील करने की हिदायत सिर्फ अदालत देगी। इसके अलावा कोई भी ऑफिसर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर इसको डी सील करने का जो है पाबंद ना होगा। जी ठीक है, कमिश्नर लाहौर इस हवाले से जो है नुमाइंदगी करेंगे। मलिक अयान तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इदारा खुराक और ज़राअत अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान का अहसन इक़दाम है। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पोशीदा ज़र इख़राजात के हवाले से मीडिया को खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानते अपने नुमाइंदे उमर भट्ट की इस खुसूसी रिपोर्ट में। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में FAO के ज़ेरे तमाम ज़री खुराक के निज़ाम में पोशीदा अखराजात के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग दी गई। इदारा खुराक और ज़राअत अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान की जानिब से मौजूदा ज़री खुराक के निज़ाम में पोशीदा अखराजात पर रोशनी डाली गई। पाकिस्तान की ज़री खुराक के निज़ाम में पोशीदा अखराजात की कुल लागत सालाना 10 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच जाती है। ये तजिया 154 ममालिक पर मुश्तमिल एक जामिया मुतालिया पर मबनी FAO की रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के 2023 के एडिशन का हिस्सा है, जिसमें सेहत, माहौलियात, मुआशरे पर इनके पोशीदा अखराजात के कसीर जहती असरात पर रोशनी डाली गई। रिपोर्ट में मजीद बताया गया, पाकिस्तान के पोशीदा ज़री अखराजात दुनिया के कुल GDP का तकरीबन 10% बनता है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि कम आमदनी वाले ममालिक गैर मुतनासिब बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। इस मौका पर आमर इरशाद FAO के पाकिस्तान में हेड ऑफ प्रोग्राम ने कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो एग्री फूड सिस्टम है, ये फूड सिस्टम आप उसको कह लें, जो हमने पिछले 75 ईयर्स में पाकिस्तान में इस्टेब्लिश किया है, वो ऐसा लग रहा है कि वो जो मुल्क में खुराक की ज़रूरत है उसको पूरा करने में अब नाकाफ़ी है। अब वो जितनी खुराक हम पैदा कर रहे हैं वो हमारी 245-250 मिलियन की जो पॉपुलेशन है उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। उसकी वजह से पिछले 2-3 सालों से जो फूड ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है और फूड ट्रेड डेफिसिट जो है अब तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर हर साल है। उसमें हमने कई साल गंदम इंपोर्ट नहीं की थी, लेकिन पिछले 1-2 सालों में गंदम हम अब इंपोर्ट करने लगे हैं। तो
اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اس میں ان چیزوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے جو ہم ریگولر چیزیں گرو کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو کچن آئٹم جس کو کہتے ہیں نا ویجیٹیبل اور فروٹس پہ زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور لائف اسٹائل پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت کاسٹ ہے جو ہم اپنے گھروں میں ہمارا بجٹ ہے اس میں تقریباً 45% جو ہے اینیمل بیسڈ فوڈ ہے, یعنی اس میں ملک ہے, اس میں گوشت ہے, اس میں اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ہمیں ان چیزوں پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے, ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم نہ صرف ان کو سفیشینٹلی گرو کر سکیں, پاکستان میں پروڈیوس کر سکیں, بلکہ آلسو کچھ ہم چیزیں باہر ایکسپورٹ بھی کر سکیں. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ اور مجسٹریٹ سیکریٹریٹ کا سیکریٹریٹ سب ڈویژن کے مختلف علاقوں میں دورہ ہے. ٹیموں کے ہمراہ مختلف علاقوں میں انسداد تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کیا گیا. مزید تفصیلات کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ متعدد غیر قانونی ڈھانچے کو مسمار کر دیا گیا, مواد ضبط کر لیا گیا اور غیر مجاز عمارتوں کو مسمار کر دیا گیا. مجسٹریٹ سیکریٹریٹ نے قیمتوں کی چیکنگ کی. ایک غیر قانونی پیٹرول فلنگ ایجنسی کو سیل کر دیا گیا. ناظرین اب کچھ بات جنگی صورتحال سے متعلق. تو غزہ کے سب سے بڑے الشفا ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں شہید 179 فلسطینیوں کی اجتماعی قبر میں تدفین کر دی گئی. الشفا ہسپتال میں موجود 179 لاشوں کو ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں اجتماعی قبر میں دفنایا گیا ہے. ڈائریکٹر ہسپتال نے کہا کہ شہید فلسطینیوں کی لاشوں کو اجتماعی قبر میں دفن کرنے پر مجبور کیا گیا. اور اب کچھ دیگر خبریں شوبز کی دنیا سے. تو بالی ووڈ کی بیبو کہلانے والی اداکارہ کرینہ کپور خان نے کہا کہ شادی سے قبل ان کے اور سیف علی خان کے درمیان 5 سال تک تعلقات رہے اور جب انہیں بچوں کی خواہش ہوئی تو دونوں نے شادی کر لی. ان کا مزید کہنا تھا کہ اگرچہ وہ 2 بچوں کی ماں بن چکی ہیں اور خاندانی زندگی میں مصروف عمل ہے, لیکن اس کے باوجود وہ آج بھی نہ صرف خوبصورت ہیں بلکہ وہ پرکشش اور خوبرو اداکارہ بھی ہیں. اداکارہ دیپیکا پڈوکون کا کہنا ہے کہ بالی ووڈ میں کل بھی نیپوٹزم تھی اور آج بھی ہے. نوجوانی میں بالی ووڈ میں کام کرنا شروع کیا تو انڈسٹری میں پہلے سے کام کرنے اور کامیابی حاصل کرنے والے لوگوں کے درمیان عدم تحفظ کے احساس کا سامنا کرنا پڑا. کریئر کے شروع میں اپنے کھانے پینے اور سفر کے اخراجات خود اٹھاتی تھی. بالی ووڈ سپر سٹار سلمان خان اور کیٹرینہ کیف کی فلم ٹائیگر 3 اپنے ریلیز کے دوسرے دن ہی 100 کروڑ کے کلب میں داخل ہو گئی ہے. فلم نے دوسرے دن کے اختتام تک 59 کروڑ تک کا بزنس کیا ہے اور پہلے دن کو ملا کر اس کا مجموعی بزنس 104 کروڑ تک جا پہنچا ہے. ٹائیگر 3 میں جہاں سلمان خان نے جاسوس ایجنٹ کا کردار ادا کیا ہے تو وہیں دوسری جانب کیٹرینہ کیف بھی زویا نامی جاسوس کے کردار میں منظر عام پر نظر آ رہی ہے, جبکہ عمران ہاشمی نے فلم میں ولن کا کردار نبھایا ہے. بھارتی ٹی وی کی تاریخ کے کامیاب ترین شوز میں شامل دی کپل شرما شو اب کس پلیٹ فارم سے نشر ہوگا, یہ منظر عام پر آ گیا ہے. سوشل میڈیا پر کپل شرما شو کا نیا پرومو جاری کر دیا گیا جس کے مطابق کامیڈین کپل شرما کا شو اب نیٹ فلکس سے نشر ہوگا. پاکستانی اداکارہ نتاشا علی نے دعویٰ کیا کہ اگر میں چہرہ چھپا بھی لوں تو مداح آنکھیں اور زلفیں دیکھ کر پہچان لیتے ہیں. شادی کے بعد زندگی میں تبدیلی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نتاشا علی کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد میری زندگی اور عادتیں تبدیل ہو چکی ہیں. شادی سے پہلے میں شوٹنگ پر ہمیشہ تاخیر سے پہنچی تھی, مجھے نیند سے اٹھنے میں مشکل درپیش ہوتی تھی, لیکن شادی کے بعد میں جلد جاگ جاتی ہوں. ایک اور سوال کے جواب میں نتاشا علی نے انکشاف کیا کہ ایک ساتھی اداکارہ نے مجھ سے شادی کے بعد کی زندگی سے متعلق سوال پوچھتے ہوئے مشورہ دیا کہ شوہر کی نوکرانی کبھی بن کر نہ رہنا. معروف میزبان ندا یاسر نے اداکار اور میزبان فہد مصطفیٰ سے خاندانی تنازع کا اعتراف کیا ہے. ندا کا کہنا تھا کہ فہد مصطفیٰ کے میرے شو میں نہ آنے کی وجہ میں آن ایئر شو میں نہیں بتا سکتی.
اداکارہ آسما نعمان نے کہا کہ شوہر سے ان کی پہلی ملاقات ایک فلاحی پروگرام میں ہوئی تھی، جس کے بعد شوہر انہیں گھر پر عطیات دینے آتے تھے، جس پر انہیں ان سے محبت ہو گئی تو دونوں نے شادی کر لی۔ آسما نعمان نے مزید انکشاف کیا کہ انہیں شوہر کے ساتھ اس وقت محبت ہو گئی تھی جب وہ 9ویں جماعت کی طالبہ تھیں، اور اس وقت انہوں نے شوہر کا کوئی بھی ڈرامہ تک نہیں دیکھا تھا۔ نامور پاکستانی اداکارہ غنا علی نے کہا کہ شادی اور فیملی بہت ضروری ہے، اس سے زندگی میں ٹھہراؤ آتا ہے۔ شادی سے متعلق بات کرتے ہوئے اداکارہ غنا علی کا کہنا تھا کہ میرے خیال سے فیملی بنانے کے بعد مجھ میں عقل آتی ہے۔ کچھ دیگر خبریں کھیل کے میدان سے تو آپ کو بتائیں کہ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ زکا اشرف نے ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی کی بنیاد پر سلیکشن کمیٹی کو فارغ کر دیا۔ عبوری چیف سلیکٹر توصیف احمد، وجاہت اللہ واسطی اور وسیم حیدر شامل تھے۔ نئی سلیکشن کمیٹی کا باضابطہ اعلان 1-2 روز میں متوقع ہے۔ ناصرین، اب سوال یہ ہے کہ بابر اعظم قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان برقرار رہیں گے یا نہیں، فیصلہ کل متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ زکا اشرف سے کل ملاقات متوقع ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات سے قبل بابر اعظم کی مستقبل سے متعلق قریبی لوگوں سے مشاورت جاری ہے۔ وہیں دوسری جانب پاکستان سپر لیگ میں فرنچائز لاہور قلندرز کے ڈائریکٹر عاقب جاوید نے فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی اور حارث رؤف کو T20 کا بالر قرار دے دیا ہے۔ آئی سی سی ون ڈے ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے بالرز کی ناقص کارکردگی کے بعد ان پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ اب عاقب جاوید کی جانب سے اس معاملے پر وضاحت پیش کی گئی۔ ہم نے شاہین اور حارث کو T20 کرکٹ کے لیے ٹرین کیا، مجھے پچھلے ہفتے سے گالیاں دی جا رہی ہیں۔ قومی کرکٹر امام الحق شادی کی تیاریوں کے باعث آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میچز کے لیے لگنے والے ٹریننگ کیمپ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنر امام الحق شادی کی تقریبات کے باعث دورہ آسٹریلیا سے قبل لگنے والے ٹریننگ کیمپ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ قومی کرکٹر امام الحق شادی کی تیاریوں کے باعث آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میچز کے لیے لگنے والے ٹریننگ کیمپ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنر امام الحق شادی کی تقریبات کے باعث دورہ آسٹریلیا سے قبل لگنے والے ٹریننگ کیمپ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ انویسٹیگیشن پولیس میں بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کی روایت برقرار ہے۔ انچارج انویسٹیگیشن جنوبی چھاؤنی انسپیکٹر محمد اشرف نے اپنی ٹیم کے ہمراہ گمشدہ شائستہ بی بی اور اس کے بیٹے حسن علی کو بحفاظت تلاش کر کے ورثاء کے سپرد کر دیا۔ مزید تفصیلات کے مطابق ترجمان انویسٹیگیشن ونگ سیغم عباس کے مطابق ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور کی ہدایت پر انویسٹیگیشن پولیس نے کارروائی کی۔ گمشدہ شائستہ بی بی اور اس کے بیٹے کو جدید ٹیکنالوجی اور سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے رحیم یار خان سے تلاش کیا گیا۔ گمشدہ شائستہ بی بی اور اس کے 6 سالہ بیٹے کی بحفاظت بازیابی پر ورثاء کا پولیس ٹیم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ انویسٹیگیشن پولیس میں بچڑوں کو اپنے سے ملوانے کی روایت برقرار ہے۔ انچارج انویسٹیگیشن جنوبی چھاؤنی انسپیکٹر محمد اشرف نے اپنی ٹیم کے ہمراہ گمشدہ شائستہ بی بی اور اس کے بیٹے حسن علی کو بحفاظت تلاش کر کے ورثاء کے سپرد کر دیا۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے KN نیوز۔